Okay, good morning, students. Today we'll discuss in the data frame how we can access the data. Even sometimes we need to access the data from rows, or sometimes we need to access the data from columns. Okay, let's try to understand with an example how we can access a particular column value or more than one column value. Okay, so suppose we are taking an example of our data frame name is DF5. You can take anything. In this data frame, we have created one column for population, hospital, schools, and index is Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. So first of all, you have to create practically this data frame into your system. Yes, 5 different methods I told you how we can create a data frame. You can create this data frame either using a list, either using 2-dimension dictionary, etc. Right? So first of all, try to create this data frame so that the value can be provided. Okay. Now selecting oblique accessing a column. एक कॉलम को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट इन दिस सिंटैक्स DFO. DFO मीन्स डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. ऐसे ही कोई वेरिएबल का नाम ले लिया DFO, उसके बाद कॉलम नेम. देखिए दो तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. एक तो डाटा फ्रेम के नाम के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम देना है जिसकी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं, राइट, और वो नाम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा. दूसरा तरीका ये है कि डॉट ऑपरेटर, आप डॉट नोटेशन यूज करके या डॉट ऑपरेटर यूज करके आप उसको कॉलम का नाम सीधा दे सकते हैं. लेकिन जब हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, राइट. ओके, सो टेक एन एग्जांपल DF5. दिस इज द DF5. We want to access the value of the column population, so we'll write in the inverted comma. Okay, population value will come whenever we will print this. Population value will come. We can take another example. Schools definition, schools value will come. Or second way, we can write DF5 dot population. So in any one of these two ways we can access to a particular column. Okay, if we want to access more columns, so for accessing multiple columns you just need to put a comma inside it. Suppose we want to access population value and suppose hospital value, so comma write hospital. ओके, सो जितने भी कॉलम आप लिखेंगे केवल उन्हीं कॉलम्स की वैल्यू को आप एक्सेस कर पाएंगे, राइट. आप डॉट नोटेशन से भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि इनका ऑर्डर चेंज करें, मतलब पॉपुलेशन पहले ना आए हॉस्पिटल पहले आ जाए, तो आप इसको पहले लिख दीजिए. यू कैन डू लाइक दिस आल्सो DF5 हॉस्पिटल कॉमा पॉपुलेशन. Okay, so in this way you can also take the output of your particular columns, right. Okay, let's try to understand it with an example. Suppose create a data frame, namely aid, that stores the aid by NGOs for the different states like Andhra, Odisha, MP, UP, and having the columns toys, books, uniforms, shoes, and having the different values. Okay, you have to write a program to display
the aid for books and uniform only and shoes only. So you have to write the program, import pandas as PD, and here you have to write the code to create a data frame. Okay, any one method you can use to load the data frame or create the data frame, that already discussed. And now you can print aid for the books and uniform. Print aid for the books and uniform, ये आपका as it is ऊपर आ जाएगा आउटपुट के. The command is print bracket start aid, then pass these two columns, books and uniform, and print aid dot shoes. So only the corresponding values will be displayed like this. Okay. Okay, and now let us discuss selecting or accessing a subset from a data frame using row or column names. Okay, to access rows or column, combination of rows or columns, we can use the following syntax like this. कोई भी डाटा फ्रेम का नाम .loc start row colon end row then comma start column and end column. Okay, suppose to access a row, just give the rows name or label as data frame का नाम .loc और row label comma colon. Don't forget this colon. After make sure not to miss the colon after comma. For example, df5.loc Delhi. So Delhi से related जो भी data है वो आपका access हो जाएगा, right? Use this syntax to access one row. And you can take another example. Suppose we want to display the records for the Chennai, so you can pass the Chennai. Okay, in this way we can pass. So suppose to access multiple rows, we can use data frame object name .loc start row colon end row comma colon. Make sure again not to miss the colon after comma. So you can take example like this. Okay, and note that when you specify start row colon end row, Python will return all the rows falling between start row and end row along with the start row and end row. For example, we are giving the command df5.loc मुंबई कॉलन चेन्नई. अब मुंबई और चेन्नई के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी. अगेन डोंट मिस कॉमा एंड कॉलन बिकॉज हमें यहाँ रो का एड्रेस देना है, राइट. सो टू एक्सेस सेलेक्टिव कॉलम्स वी कैन यूज़ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट .loc. अब हमें कॉलम का एड्रेस देना है तो आपको रो के जगह कॉलन लगाना है कॉमा, फिर आपको स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम की वैल्यू देनी है. ओके, अगेन नॉट टू मिस द कॉलन बिफोर कॉमा. फॉर एग्जांपल df5.loc colon comma then population colon schools. Okay, so whatever the result will be there. You can give another example like this. Okay, to access a range of columns from a range of rows, we can use data frame object name .loc start row colon end row comma start column colon end column. Okay, like this. So for example, df5.loc Delhi colon Mumbai, this is the row address, and population colon hospital, this is the column address. You can see the output. We can also understand it with an example. Suppose give a data frame namely aid that stores the aid by NGOs for the different states.
like Andhra, Odisha, MP and UP. So question is, write a program to display the aid for states Andhra and Odisha for books and uniform only. Okay, so you have to write the program. First of all, you need to create your data frame, and after that print aid. Aid is the name of our data frame .loc, and you can give Andhra colon Odisha. तो आंध्रा और ओडिशा से स्टार्ट होके ये रो एड्रेस है आपका. नाउ बुक्स एंड यूनिफॉर्म, बुक्स कॉलन यूनिफॉर्म. सो यू विल फाइंड द आउटपुट only for the Andhra and Odisha books and uniform. Now selecting rows oblique columns from a database. Sometime our data frame object does not contain rows or columns label, or even you may not remember them. In such case, we can extract subset from a data frame using the row and column numeric index oblique position. यानी कि इसके लिए आपको ILOC यूज़ करना है, राइट. ILOC इन प्लेस ऑफ LOC, यानी कि इंटीजर लोकेशन आपको देनी है, राइट. सो यू कैन व्हेन वी यूज़ ILOC, then start index colon end index given for rows and columns work like a slices, and the end index is excluded. जो end index इसके अंदर होता है ILOC के अंदर, वो इंक्लूड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल df5.iloc 0:2, यानी कि ये रो का एड्रेस है, इसको 0 से स्टार्ट करना है और 2 एंडिंग इंडेक्स है, तो 2 नहीं लेना है, इसमें से आपको एक लेस करना है. तो 0 जिसका इंडेक्स 0 है, जिसका इंडेक्स 1 है, 0 से 1 इंडेक्स तक की वैल्यू आएंगी. सिमिलरली द सेम थिंग विल हैपन विद द कॉलम आल्सो. 1 कॉलम 3, यानी कि इंडेक्स कॉलम 1 और 2 3 तक जाना है, तो आपको 2 तक लेना है, 1 और 2. सो यू कैन सी द आउटपुट. So with ILOC the end index is excluded in the result. We can take another example. df5.iloc 0:2 1:2. तो जो भी एंडिंग इंडेक्स है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, राइट. सो यू कैन सी with LOC both start label and end label are included when give as start or end, but with ILOC like slices end index or position is excluded when given as start colon end, right. You can see another example. This is a data frame that is given, right. So from this database data frame you have to write the statement for the following: display rows 2 to 4 both inclusive, from 2 to 4 both inclusive, display columns item type and total profit. From row 2 to 4 both inclusive, display first 4 columns. So you can provide these arguments with the data frame. 2:5, आपको पता है कि इसमें ना तो LOC दिया है हमने, तो 2:5 का मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट करके 5 इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन 5 इंडेक्स जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 2 to 4 जाएगा, राइट. यू कैन गिव अनदर कमांड फॉर द सेकंड क्वेश्चन. df.loc 2:5, और इसमें आपको डिफाइन करना है कि आइटम टाइप कॉलम चाहिए और आपका टोटल प्रॉफिट चाहिए, राइट. इस तरह से. एंड फॉर थर्ड, इसमें आपका लोकेशन दिया है, आपकी इंटीजर लोकेशन, यानी कि इंडेक्स के साथ 2:5 और 0:4. सो यू कैन सी द आउटपुट, ओके. सो यू हैव टू प्रोवाइड ILOC. ILOC का मतलब होता है इंटीजर लोकेशन. अगर आपकी इसमें इंडेक्सिंग नहीं दी है 0 1 2 3, तो यू कैन ऑल्सो पास. नाउ selecting oblique accessing individual values.
अगर आपको इंडिविजुअल डाटा वैल्यू सेलेक्ट करनी है या एक्सेस करनी है फ्रॉम ए डाटा फ्रेम, वी कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. आइदर गिव नेम ऑफ रो और न्यूमेरिक इंडेक्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर एग्जाम्पल डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉलम और रो नेम और रो न्यूमेरिक इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल df5 डॉट पॉपुलेशन और ब्रैकेट में आपको ये रो लेबल दिया हुआ है दिल्ली. सिमिलरली df5 डॉट पॉपुलेशन और ये 1 जो है इंडेक्स पास किया है, राइट. आइदर गिव नेम ऑफ रो और द न्यूमेरिक इंडेक्स. ओके. We can also use at and IAT. Okay, so you can give rows and columns name with at attribute and the numeric row index and numeric column index with IAT यानी कि integer location के साथ attribute to the access individual data values. Next, adding oblique modifying rows column values in a data frame. We can assign or modify data in a data frame in the same way as we do with the other objects. All we need to do is to specify the row name and the column name. मतलब आपको रो का लेबल या रो का नेम या कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना है along with the data frame, right? The process of adding and modifying rows and column values is similar as you will see in the following subsection. Adding and modifying a column. Columns in a data frame can be referred to in a multiple way, assigning a value to a column. इसमें क्या होता है कि अगर आपका पहले से वो कॉलम एग्जिस्ट है, मीन्स विल मॉडिफाई इट if the column is already exist, or next will add a new column if it does not exist already. अगर कॉलम पहले से है तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, अगर वो कॉलम नहीं है तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा. टू चेंज और ऐड ए कॉलम वी कैन यूज़ द सिंटैक्स डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉलम नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू और डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम इक्वल टू न्यू वैल्यू. आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी पास कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल df5 डेंसिटी इक्वल टू 1219. देखिए डेंसिटी अपने पास पहले से इस डाटा फ्रेम में नहीं था, तो यू कैन सी कि डेंसिटी नाम का एक नया कॉलम ऐड हो गया है, राइट. बट द प्रॉब्लम इज सबके साथ 1219 वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है. अगर हम सबके लिए अलग अलग वैल्यू पास करना चाहते हैं देन वी हैव टू पास the values for the column density. Suppose df5 ब्रैकेट में density इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपको 5 वैल्यूज़ पास करनी है, तो डेंसिटी के लिए कॉलम के साथ ये 5 वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, राइट. सो इन द सेम वे वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम ऑल्सो. अगर उसको वो कॉलम पहले से है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं. So we can modify an existing column by assigning a new list of values to it. That is, for existing column it will change the data value. यानी कि पहले से अगर कॉलम है तो उसकी डाटा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. एंड फॉर नॉन एग्जिस्टिंग कॉलम इट विल ऐड ए न्यू कॉलम. देर आर सम अदर वेज ऑफ एडिंग ए कॉलम. फॉर एग्जाम्पल डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट डॉट LOC, or we can use assign also. You can see the syntax, right. For example df5.loc colon comma density. कॉलन शुरू में इसलिए लगा कि आपको रो का नहीं कॉलम का एड्रेस देना है यहाँ, तो जिसका एड्रेस नहीं देना है उसकी जगह पर आप खाली कॉलन लगा दीजिएगा, राइट. फिर कॉमा, फिर कॉलम की वैल्यू, डेंसिटी को आपने ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी, और आप इस तरह से भी असाइन मेथड से भी जो है आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी रोज हैं आपकी उस कॉलम के लिए आपको उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड करनी है, नहीं तो वैल्यू एरर का मैसेज आ जाएगा, राइट.
So when we assign the something to a column or to data frame, then for existing column it will change the data values, and for non-existing column it will add a new column. Okay. Now let's see how we can add or modify a row. Like columns, we can change or add rows to a data frame also using at or loc attribute, right? To change or add a row, data frame object dot at या डॉट loc और रो का नाम यानी कि जो भी रो का एड्रेस है कॉमा कॉलन. अब आपने कॉलम की जगह कॉलन लगाना है बिकॉज हम कॉलम पे काम नहीं कर रहे, हम रो पे काम कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल df5 डॉट एट बेंगलोर कॉमा कॉलन इक्वल टू 1200. अब आप देखिए इसके अंदर एक नई रो ऐड हो गई जिसके अंदर 1200 ऐड हो गई, राइट. अगर हम बेंगलोर को डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो जहाँ 1200 था वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, राइट. इस तरह से आप जो है डिफरेंट वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सपोज to change or modify a single data value, to change or modify single data value we can use the syntax data frame object dot column name, रो का नाम या लेबल जो भी दिया हुआ है, इक्वल टू न्यू मॉडिफाइड वैल्यू. नई वैल्यू आपको क्या चेंज करनी है वो देनी है, राइट. फॉर एग्जांपल df5 डॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो बेंगलोर नाम की रो है उसमें आपको ये वैल्यू देनी है, राइट. सो यू कैन सी दिस वैल्यू है चेंज्ड. बेंगलोर में जो पहले वैल्यू थी आपकी वो ये थी, ठीक है. अब उसकी जगह ये वैल्यू चेंज होके ये आ गई है. सी दिस टाइम ओनली दिस सेल गॉट मॉडिफाइड. सो वी कैन चेंज द सिंगल सेल आल्सो, राइट. नेक्स्ट इज डिलीटिंग और रीनेमिंग कॉलम्स ऑब्लिक रोज. अगर आपको रो को डिलीट करना है या रीनेम करना है तो उसके लिए रीनेम मेथड आप यूज़ कर सकते हैं रीनेम के लिए, और डेल यूज़ कर सकते हैं डिलीट के लिए. सो डिलीटिंग रोज ऑब्लिक कॉलम इन ए डाटा फ्रेम. अगर एक डाटा फ्रेम से आपको कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए आप डेल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं. डेल डाटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम. फॉर एग्जांपल डेल df5 और ब्रैकेट में आपने पास कर दिया डेंसिटी, तो डेंसिटी जो कॉलम है वो आपका रिमूव हो जाएगा, राइट. टू डिलीट रोज फ्रॉम ए डाटा फ्रेम वी कैन यूज़ ड्रॉप मेथड. df डॉट ड्रॉप के बाद आपको इंडेक्स या जो भी इंडेक्स का सीक्वेंस है वो पास करना है, ओके. फॉर एग्जांपल both these commands will delete the rows with the index 2, 4, 6, 8, 12 from the data frame df. अगर df डाटा फ्रेम से मैं ये वाली रोज़ जो है ना ख़त्म करनी है तो विल राइट df डॉट ड्रॉप. अब पहले वाले कमांड में रेंज फंक्शन का यूज़ किया है 2, 13, 2, तो 2 से 12 तक की जो भी वैल्यूज़ होंगी और उसके बाद दो का गैप, यानी कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 12, ठीक है. इस तरह से आपका जो है ड्रॉप मेथड रो को डिलीट करेगा. वी कैन ऑल्सो गिव द एक्सिस. यू नो एक्सिस 1 यूज फॉर कॉलम एंड एक्सिस 0 यूज फॉर रोज. सो वी कैन यूज एक्सिस अलॉन्ग विद द इंडेक्सेस लेबल. देन ड्रॉप मेथड विल ड्रॉप द कॉलम्स. The following command will drop the mentioned column. जैसे df dot drop total cost comma order id comma x is equal to 1. This argument signifies to delete the columns. Okay, you can see another example from df5 or dtf5. Create another data frame and it must not contain the columns population and row Bangalore. तो आपको जो डाटा फ्रेम बनाया था df5 उसके अंदर
पॉपुलेशन और बेंगलोर नाम, पॉपुलेशन नाम का कॉलम और बेंगलोर की रो थी, लेकिन वो आपको डिलीट करनी है. सो यू कैन राइट दिस प्रोग्राम. तो ड्रॉप मेथड से आपने बेंगलोर को डिलीट कर दिया और डेल स्टेटमेंट से आपने पॉपुलेशन के कॉलम को डिलीट कर दिया. ओके, सो यू कैन सी द आउटपुट. इन द आउटपुट बोथ आर removed. Okay, now let's come to know how we can rename a row or column. अगर आपको किसी रो और कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आपको रीनेम मेथड का यूज़ करना है. दिस इज़ द सिंटैक्स. डाटा फ्रेम नेम डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू उनकी जो भी पूरी नेम की जो डायरेक्टरी है, कॉलम्स में भी आपको पूरी डायरेक्टरी प्रोवाइड करनी है. और एक और आर्गुमेंट इसमें पास करना है, इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स. इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि यदि आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू रखेंगे तो सेम डाटा फ्रेम के अंदर चेंज होगा. अगर आप इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स रखेंगे तो फिर आप एक दूसरा डाटा बेस क्रिएट होगा. और अगर फॉल्स रखा तो जो ओरिजिनल डाटा बेस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. यू कैन सी इन प्लेस आर्गुमेंट एज ट्रू इफ़ यू वांट टू रीनेम द रोज oblique columns in the same data frame. As if you skip this argument, then a new data frame is created with the new index or column name and the original remain unchanged. So let's now take an example. Suppose top df नाम का हमारा एक डेटा फ्रेम है. उसमें ये वैल्यू है सेक्शन ए बी सी डी और कॉलम्स आपके रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. नाउ चेंज द रोज लेबल एज ए बी सी डी. जो सेक्शन ए बी सी है उनकी जगह आपको ए बी सी डी लिखना है, खाली चेंज करना है इसको. सो विल राइट टॉप डी एफ डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू, और ये आपको डिक्शनरी पास करनी है यहाँ पे, नेम डिक्शनरी, यानी कि सेक्शन ए को चेंज करके आप ए कर दीजिएगा. इन प्लेस ऑफ section B we have to write B, section C and D like this. Okay, see you can see the names directory for the index argument is storing the old and new index names. So you can see the changes. In place of section ABCD, only ABCD you will get in the output. So this statement will show the changed index, but when we display the data frame top df after executing the above statement, it will show you the original data frame as it is. उसमें कोई चेंज नहीं होगा because default rename creates a new data frame with change name. अब आपको in place उसके अंदर एक आर्गुमेंट ऐड करना होगा, राइट. अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये एज इट इज़ दिखाई देगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेगा उसमें. तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक और आर्गुमेंट पास करना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, राइट. वेन एवर वी पास दिस आर्गुमेंट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इट विल मेक चेंज इन द ओरिजिनल डेटाबेस, राइट. सो यू कैन सी टॉप डी एफ को अब हमने प्रिंट किया तो ये सब कुछ चेंज इसके अंदर हो गया. सो वी कैन यूज रीनेम टू चेंज द कॉलम नेम टू with the following statement will change the column name in the top df data frame. For example, top df dot rename columns equal to, okay, so column equal to roll number colon rno. तो क्या होगा, rno जो है ना वो रोल नंबर की जगह आ जाएगा, राइट. सो हम इसको पूरी कमांड को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, इंडेक्स कॉमा कॉलम कॉमा इन प्लेस आर्गुमेंट. तो जितने भी आर्गुमेंट आप पास करेंगे उसके हिसाब से डाटा फ्रेम का आउटपुट हमें आ जाएगा. यू कैन सी अनदर एग्जांपल. इसमें आपको एक डाटा फ्रेम यूज करना है जैसे सेल्स डी एफ, और यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू रीनेम द इंडेक्सेस ऑफ जॉन सी एंड जॉन डी. उसकी जगह आपको सेंट्रल और दक्षिण जो है देना है, और सेल्स जो कॉलम नेम है टारगेट एंड सेल्स, उसको टारगेटेड और अचीव्ड देना है. सो फॉर दैट यू कैन राइट द प्रोग्राम लाइक दिस, प्रिंट सेल्स डी एफ डॉट रीनेम,
ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू से आपके जो रो लेबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। जॉन सी की जगह सेंट्रल आ जाएगा, जॉन डी की जगह दक्षिण आ जाएगा। ये जो बैकस्लैश का साइन आप देख रहे हैं दैट इज शो टू कि द कमांड इज कंटिन्यूड। ओके, कॉलम्स का नाम आप इसमें दे सकते हैं, इससे कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यू कैन सी द आउटपुट इन सच ए वे वी कैन रीनेम आवर रो लेबल एंड द कॉलम नेम ऑल्सो। ओके, मोर ऑन डाटा फ्रेम इंडेक्सिंग यानी कि बुलियन इंडेक्सिंग। वी कैन ऑल्सो पास द बुलियन इंडेक्सिंग। आपको पता है कि बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होती हैं या फिर 0 1 पास करते हैं उसके अंदर। तो आप इंडेक्स में ट्रू फॉल्स वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, राइट। सो क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम्स विद अ बुलियन इंडेक्स। यू नो कि बुलियन इंडेक्स में आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू देनी है without inverted comma, right? So you can see an example. Import pandas as pd, days equal to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday। एक हमने लिस्ट पास कर दी, राइट। सिमिलरली हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया क्लासेस, उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दी। फिर एक और वेरिएबल लिया डीसी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। डेज यानी कि लिखा हुआ आएगा डेज ऊपर आपका कॉलम का नाम और इसके साथ डेज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी, कॉमा नंबर ऑफ क्लासेस के साथ क्लासेस की वैल्यू आएगी। और इसमें आपने एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, डीसी पास कर दिया यानी कि डीसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इंडेक्स में आपको ट्रू फॉल्स पास करना है, राइट। सो यू कैन सी जो इंडेक्स आपका बना है वो ट्रू फॉल्स की शेप में आएगा। ओके, वी कैन ऑल्सो एक्सेस रोज फ्रॉम द डाटा फ्रेम विद द बुलियन इंडेक्सिंग। with the Boolean indexing is very useful for filtering records, that is for filtering for finding or extracting the true or false index rows. We can filter out records. For example, df यानी कि डाटा फ्रेम का नाम .loc ट्रू या फॉल्स या 1 या 0 वी कैन पास। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी क्लास df, ये हमारे डाटा फ्रेम का नाम है, .loc ट्रू। तो जो भी ट्रू की वैल्यू होंगी, जिनका डाटा इंडेक्स ट्रू होगा वो सारी डिस्प्ले होंगी। अगर आप फॉल्स की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप 0 पास करेंगे तो 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएंगी, having the index value 0, right? So in such a way we can access rows from the data frame with the Boolean indexing. So students, this marks the end of your first chapter. I hope now all the things are clear to you. Thank you.